Hello and welcome to second video of spoken English. We have done that we should use very simple words first at the initial stage. You have to use yes, no, please, thanks, and then these imperative sentences: do it, have it, go there, come here, take it, give it, etc. Then let's go out, let's have a walk, let's go to the market, let's watch a movie, let's sing, let's dance, let's play, etc. So these are the sentences you have to use frequently. Hope you might have done little practice also. And don't be hesitated. Always speak word sentences whenever you get a chance. And if you are good at English, you know everywhere when you go for a job, you have interview, you speak few sentences of English naturally, you are sure to be selected. अगर आप इंग्लिश बोल जाते हैं, थोड़ा इंप्रेशन डाल जाते हैं, तो आपका चांस बन जाता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे किसी भी जॉब के लिए, प्रोवाइडेड के उनके पास पोस्टें हों और आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल गए हैं, कितना अच्छा इंप्रेशन डाल गए हैं, और आपका इंप्रेशन जो है नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश में ही बनता है. पक्की बात है, अगर आप इंग्लिश बोल जाते हो तो श्योरली यू विल बी सिलेक्टेड. टुडे आई विल स्टार्ट विद tenses, and before tenses I would like to give you few more sentences, as we have done during our first video, that we should speak these imperative sentences and let's sentences. Along with that, now I will tell you some more sentences which you can have the practice, and these are exclamatory sentences. exclamatory होते हैं जो हैरानी वाले होते हैं, दुख वाले होते हैं, गमी वाले होते हैं, खुशी वाले होते हैं. These are exclamatory sentences. So I will start with these new sentences, and after that we will start with our tense part. So for imperative sentences, you know you have to start with verb, do it, have it, and go there, come here. And for exclamatory sentences, you can use different words for different situations. जैसे हैरानगी है, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर बच्चा है. How beautiful the flower is. How beautiful the flower is. How beautiful the flower is. Even the flower is भी काट सकते हो, आप सीधा कह सकते हो how beautiful the child is. How beautiful, how cute, how pretty the flower is. अगर पूरा करना the flower is, अगर ये नहीं करना है या चाइल्ड है तो how beautiful the flower is, how beautiful the child is. पीछे इसके चिन्ह भी होता है. We are not concerned with written or other reading English. We are concerned with mainly spoken English. So how beautiful, only how beautiful will do. यही काम चला जाएगा. It will do मतलब काम चल जाएगा. It will do. New sentence. It will do. हमारा काम जो it will do. Okay. How beautiful. तो द फ्लावर चाइल्ड ना भी बोलो तो भी कोई बात नहीं. ये आपने हाउ ब्यूटीफुल सीधा लिख देना. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. क्या व्हाट भी लगा सकते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हाउ ब्यूटीफुल. सो लाइक दिस. देन वी हैव खुशी वाले सेंटेंस. हमने मैच जीत लिया है. हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. हुर्रा,
वी हैव won द मैच, उसमें हुर्रा चल, हुर्रा, हुर्रा, वी हैव won द मैच। सो एचपी लगा सकते हो यहाँ, हुर्रा वी हैव won द मैच, खुशी है, तो खुशी के बाद भी आप ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हो। सो इसी तरह से अगर दुख है, अलास, अलास, ALAS, अलास, आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया, लुटिया गया, मारा गया, अलास आई एम अनडन। दिस सेंटेंस यू कैन यूज। ओह ही इज डेड, वो उसकी मौत हो चुकी है, ओह यूज कर सकते हो। वेरी सैड, वेरी सैड से भी काम चला सकते, किसी की डेथ हो गई, वेरी सैड, मे ही रेस्ट इन पीस, जो कुछ भी आप लिख सकते हो। आजकल तो उसमें भी आ जाता है। You have various sentences in internet also. You can take help of internet also while writing. But while speaking, you have to say, it's very sad. It's very sad. It's very sad. Alas, I am undone. I am undone. So it is, alas, I am undone. Then we have other sentences also, mainly यही होते हैं। Exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder, exclaimed with joy, 3 प्रकार के हैं। ब्रेवो, या किसी को शाबाश देनी है, चौथी किस्म जो है ब्रेवो, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड, फौजियों के लिए। So all these sentences can be used. So these were exclamatory sentences. And last I want to tell you today is about weather. Weather conditions different होती हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, तो आपने इट इज ही लगा देना, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टुडे, टुडे भी लगा दो, या वैसे ही कहना है इट्स वेरी हॉट, इससे भी छोटा कहना वेरी हॉट, वेरी हॉट, इट इज भी खा जाओ, वेरी हॉट। टुडे ना कहो इट इज वेरी हॉट, ये ना कहो इट इज भी नहीं कहना, वेरी हॉट, वेरी हॉट, ओके, इट्स वेरी हॉट टुडे। जैसे क्या है इंग्लिश उसकी, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज हवा बंद है, तो कोई एयर इज क्लोज टुडे, विंड इज क्लोज टुडे, कुछ कह देते तो इट इज क्लोज टुडे, सिंपली इट इज क्लोज टुडे। वेदर की कोई बात नहीं कहनी कि मौसम, वेदर इज वेरी, इसमें वेदर को अलग भी कह सकते हो, लेकिन इट इज यूज कर सकते, इट इज क्लोज टुडे। क्लोज का मतलब है बंद है, क्या बंद है, हवा बंद, इट इज क्लोज टुडे, इट्स क्लोज टुडे, इट इज क्लोज टुडे। ऐसे ही बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अगर सुहावना है, इट इज कूल टुडे, कूल सुहावना है, कोल्ड बहुत सर्दी है, दुखदायक है कोल्ड, चिल्ड, चिल्ड और हो गया, कोल्ड और चिल्ड तो ज्यादा दुखदाई है, लेकिन कूल जो है वो प्लेजेंट है, दैट इज वेरी कंफर्टेबल। तो ना गर्मी है ना सर्दी है, तो कूल, मतलब वार्म है, तो दैट इज वेरी प्लेजेंट। वार्म भी हो सकता है सर्दियों में, और गर्मियों में थोड़ा कूल हो सकता है, शिमला डलहौजी, तो इट इज वेरी कूल, इट इज वेरी वार्म टुडे, कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, वी आर फीलिंग इजी, वी आर फीलिंग कंफर्टेबल, तो फीलिंग इजी, वी आर फीलिंग इजी, you can briefly said feeling easy, comfortable, very comfortable। तो इस तरह से एक शब्द से भी काम चला सकते हो। अगर आपको कुछ और नहीं कहना, comfortable, easy, hot, cold, cold, so you can use one word also। So these were the sentences about weather conditions, different conditions of weather we have, and we have to speak different sentences। So now I will start with tenses directly, because I told you that if you know tenses and the 3 forms of verb, definitely you will be able to write good English। So we have 12 tenses, उसके लिए आपने चार्ट बना लेना है, अलग अलग जो है उसमें जो फीचर्स होते हैं उसके
पहचान क्या है उसकी, टेंस की, कैसे उसको फॉर्म कौन सी लगनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। 3 चीज़ें मेन होती हैं वैसे। बाकी जैसे जैसे बीच में आएगी कुछ बातें आपको बता दी जाएंगी। पहले तो उनके नाम लिखने हैं आपने। प्रेजेंट टेंस, तो मैंने इधर को 4 कर दिया है। प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स है, पास्ट है, फ्यूचर है, 3 है। तो ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस हो गए सारे, ये पास्ट हो गए और ये फ्यूचर हो गए। ये आपके पास प्रेजेंट टेंस हो जाएंगे सारे, ये पास्ट हो जाएंगे, ये फ्यूचर हो जाएंगे। नाम पहले लिख लेने हैं और उसमें जो पहचान होगी वो अलग अलग भी हम करेंगे। पहले हम इकट्ठा लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, फिर हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम नाम लिख लेते हैं और पहचान लिख लेते हैं और फॉर्म क्या लगनी है, यही इतना ही काफ़ी है। तो ये प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट आ जाएगा इधर, या सिंपल भी कहते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, या indefinitely present indefinite tense, then present continuous tense, then present perfect tense, then present perfect continuous। और यहाँ आ जाएगा आपका प्रेजेंट वाली लाइन, ये चल पड़ेगी सारी, पास्ट वाली ये चल पड़ेगी, फ्यूचर वाली ये चल पड़ेगी, इसके साथ जोड़ देना है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर, इस तरह से ये बन जाएगा। नाउ व्हाट इज द what is the helping verb to be used, and form, what is the form of verb to be used, या उनकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सेंटेंस व्हाट इज आइडेंटिटी, कैसे पहचानोगे। तो इसमें क्या करना है आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें है ता है, जाता है, जाता है लिख देते हैं, जाती है, बाकी सब जो जाते हैं सब कुछ आ जाएगा। पंजाबी में जानता है, जानती है, जानते हैं, सर आगे जाता है, जाती है। तो इसमें आ जाएगा रहा है, इसमें सब में रहा होता है। और इसमें परफेक्ट में होता है चुका, कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, जो काम कर लिया है उसका जो है काम हो चुका है। तो ये आपका हो गया चुका या कर लिया है। और परफेक्ट किसी समय से रह रहा है, यह रहा है, ये समय से रहा है ये भी रहा, कोई को कुछ नहीं है, पर ये किसी समय से रह रहा है, 1962 से, 2000 से, 2020 वगैरह से। देन वी हैव पास्ट, पास्ट जाता था, गया, पढ़ा, स्कूल गया, बाजार गया। तो इस तरह के जितने भी हैं शब्द इसमें आ जाएंगे। मार्केट गया, ही वेंट टू द मार्केट, ही प्लेड फुटबॉल, खेला, यहाँ जाता है, खेलता है, पढ़ता है, और ये खेला हो जाएगा, ये खेला था, इसमें हो जाएगा। और आजकल इसको जोड़ते भी हैं। देन वी हैव फ्यूचर, गा गेगी, इसमें गा गेगी है, ये है वाले होते सारे, ये था वाले या ये जो है गा वाले होते हैं सारे के सारे। ये मुख्य पहचान है, आगे डिफरेंट भी कर दी गई है। तो इसमें रहा है हो जाएगा, रहे हैं, रही है, सारा कुछ आएगा। पढ़ चुका था, खाना खा चुका था, खा लिया था, जो मर्जी लिख लो, रहा। जा रहा है, जा चुका था, कर लो इसको। तो ये प्रेजेंट है तो है आएगा, प्रेजेंट में है आएगा, इसमें था आ जाएगा, बाकी वही रहेगा, जा चुका था सेम रहेगा, इसमें था आ जाएगा और इसमें का आ जाएगा, बस इतने फर्क पड़ेगा, बाकी यही जा रहा होगा इसमें हो जाएगा।
तो मान लो 2000 से है, 2 साल से है, 2-4 महीने से है, जो भी है, तो उसको अलग हम डील करेंगे कैसे करना है। तो समय से रह रहा है, इसमें है आ जाएगा, इसमें था आ जाएगा, रह रहा होगा, तो ये इनकी पहचान है, निशानियां भी कही जाती हैं, आइडेंटिटीज हैं। देन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या लिखोगे? जाएगा, जाएंगे, जाएगी, इस तरह से। और खेलेगा, पढ़ेगा, गा लगा देना, इसमें रहा होगा, और चुका होगा, पढ़ चुका होगा, खा चुका होगा, रह चुका होगा। यहाँ देख लेना क्या है, उसी के नीचे आ जाना। और वही है, इस समय से रह रहा है, रह रहा था, किसी समय से पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। तो इट हैज बीन, यहाँ हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन रेन होगा। तो इसमें 3 भागों में हम बांट देंगे इसको। पहला है वर्ब की पहली भाग, और इसमें एस लगता है, अकेला बंदा है और परे है थोड़ा, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ये आपने देख लेना क्या है। तो थर्ड पर्सन P3 लिख देता हूं प्लस सिंगुलर। प्रॉपर नाउन है राम श्याम है, वो भी अकेला होना चाहिए। 2 आ गए तो एस नहीं लगेगा, बाकी के साथ ये नहीं लगेगा, सिर्फ P3 और सिंगुलर के साथ लगेगा। बाकी इसमें सीधा ही होता है, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, राम गोज। तो ये आपने ध्यान रखना है। अकेला बंदा आ गया तो एस लगना है। यहाँ गलती खाते बच्चे बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी एस का ध्यान नहीं रखते। तो जब कोई थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो तो आपने वहां एस लगाना। ही गोज, राम गोज, शाम गोज, तो एस वहां लग जाएगा वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म। बाकी के साथ कुछ नहीं लगेगा। और डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो कोई नहीं बताता, डू और डज वो बाद में बता दिया जाता है, पर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज है, पर सिर्फ इंटेरोगेशन में और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज, डज यहाँ यूज होगा इनके साथ, तो बाकी के साथ डू होगा। तो डू डज भी मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। जा रहा है तो ये सिंपल है, इज एम आर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इज किसके साथ है, एम किसके साथ, आर किसके साथ, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगा दो। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, अलग अलग भी लेंगे इनको हम, लेकिन अभी जल्दी में छोटी वीडियो बनाने के लिए अभी हम ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद हम अलग अलग वीडियो छोटी छोटी बना देंगे। जा चुका है तो ये हो जाएगा है सिंगुलर के साथ है। आई और यू को यहाँ प्लूरल समझना है उनके साथ है लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ इन्हीं तीनों में होती है और कहीं नहीं होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें होती है और कहीं नहीं होती है। बाकी सब के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब के साथ बिना सोचे समझे लगा दो। V1 प्लस इंग, V1 प्लस इंग सब में लग जाएगा। यहाँ है, यहाँ थर्ड फॉर्म से यहाँ है प्लस V3, और यहाँ विल है, आई हुई के साथ शैल है, बाकी के साथ विल है। और यहाँ पर वाज वर एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ, आई के साथ भी बात लगाना। आई यहाँ पर कभी ये प्लूरल बनती है आई, यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है। वाज वर प्लस इंग, V1 प्लस इंग फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, V3 का मतलब थर्ड फॉर्म, V2 का मतलब सेकंड फॉर्म। तो V1 प्लस इंग, ऐसे ही जाएगा
विल आई हुई के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। वैसे ये आजकल थोड़ा छूट मिल गई है, इधर उधर हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ग्रामेटिकल रूल है वो ये है कि आई हुई के साथ शैल, बाकी के साथ विल, जितने भी हैं वो विल लगाए। और फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहा होगा विल भी शैल भी, ऐसे ही आई हुई के साथ जैसे मैंने बताया शैल भी, बाकी के साथ विल भी, और साथ में V1 प्लस, इसमें एक लगेगा, दोनों नहीं लगा दे, V1 प्लस इंग। और यहाँ विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट जितने भी हैं, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, और इसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ा होता है, हैज बीन या हैव बीन। जिनके साथ हैज लगता था उनके साथ हैज बीन या हैव बीन। और इसमें जहां पर है हैव बीन तो हैड बीन, और यहाँ विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सबको जोड़ दो, विल को भी लाओ इधर से, फिर से हैव बीन ले आओ, फिर बन गया विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और यहाँ जो प्रश्नवाची के जो नामवाचक हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उनको क्या करना है, उनको डेड यूज किया, डेड या डेड नॉट हो जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी जहाँ पर यही, इसमें नहीं है, सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं है। आई वेंट टू बाजार सीधा ही है, आई डिड नॉट गो टू बाजार, फिर फॉर्म पहली हो जाती है, इनके साथ फॉर्म पहली कर दी जाएगी। अगर डिड आ गया, सेकंड फॉर्म पहले आ गई तो इसको छोड़ देंगे। तो दीज वर सम ऑफ द मेन आइडियाज अबाउट टेंसेस। अब हम अलग अलग टेंसेस इनको लेंगे, अलग अलग भी पढ़ेंगे, और अलग अलग सेंटेंसेस को भी देखेंगे। आपने तब तक प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, जो कुछ मैंने बताया है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, वेदर के कंडीशंस के हिसाब से है, या लेट्स वाले हैं, और ये सारे सेंटेंस आपने अपने प्रैक्टिस में लाने हैं, अप्लाई देम इन योर डेली लाइफ, एंड यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड, एंड होप यू विल लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and thank you. Have a nice day. We will meet again with another video having the explanation of tenses separately. So thank you. So nice.